Morning students. So in this class we will learn about word problems, properties of division and relation between multiplication and division. So let us start with the word problems. Question number 1. 88 roses have to be equally tied into 11 bunches. How many roses must be tied in each bunch? So 88 रोज हमें इक्वली डिवाइड करने हैं 11 बंचेस में. तो एक बंच में कितने होंगे दैट वी हैव टू फाइंड. सो 11 1 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, राइट. 88 रोजेस है 11 बंचेस में. सो 11 के टेबल में 88 8 जा 88. सो हाउ मेनी बंचेस 8 bunches. Understood? Now question number 2. 117 chairs have to be equally arranged in 13 rows. How many chairs must be arranged in each row? So 117 chairs है वो 13 rows में हमें arrange करनी. It means 117 divide by 13 करना. 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91, 13 8s are 104, 13 9s are 117 and 13 10s are 130. Right. So 117 chairs 13 rows में हमें arrange करना है. तो 13 कितने सा 117 है 9 सा 117. So एक रो में कितनी चेयर्स आएंगी 9 चेयर्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. $120 paint brushes are to be equally packed in 17 pouches. How many paint brushes were packed in each pouch? So 120 पेंट ब्रश है उसको 15 पाउच में हमें अरेंज करना है. तो एक पाउच में कितने आएगा दैट वी हैव टू फाइंड. 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 135 and 15 10s are 150. So 15 and 120 120 है. Yes, 8s are 120. So our answer is 8 paint brushes. Understood? Question number 4. 102 marbles were equally distributed in 17 bowls. How many marbles did each bowl contain? So 102 marbles हमें 17 बाउल में अरेंज किए हैं. तो एक बाउल में कितने होंगे दैट वी हैव टू फाइंड. 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85, 17 6s are 102, 17 7s are 119, 17 8s are 136, 17 9s are 153, 17 10s are 170. So हमें 102 मार्बल 17 बाउल्स में अरेंज किए गए हैं. सो 17 के टेबल में 102 कब आता है 6 102. सो एक बाउल में कितनी मार्बल्स होंगी 6 मार्बल्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 5. 72,492 pens are to be packed in a packet of 12 pen each. How many such packets can be packed? So 72,492 पेन है वो 12 पैकेट्स में, और एक पैकेट में 12 पेन्स है, तो कितने पैकेट होंगे दैट वी हैव टू फाइंड. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108 and 12 10s are 120. 7 छोटा है, सो दो नंबर लेने. 72, सो 12 6 are 72, 0 0. 4 आया, छोटा नंबर है, 12 से छोटा है तो क्या डालना है यहाँ पे? 0 4. 49, 49 तो नहीं है, बट 49 से छोटा कौन है? 48. 12 4s are 48, 1 0. और यहाँ पे ये 2. 12 12 1s are 12. सो कितने पैकेट्स होंगे? 6041 packets. Understood? Next question. Question number 6. At a bakery, 17,425 pancakes were produced. They were packed in a packet of 14 pancakes each. How many complete packets can be made and how many pancakes will be left behind? So 17,425 pancakes है, और उसको there were packed in packet of 14 pancake each. तो एक पैकेट में 14 पैनकेक्स है, सो इसमें से कितने पैकेट्स बनेंगे पैनकेक्स के और कितने पैनकेक्स बच जाएंगे, दैट वी हैव टू फाइंड. सो 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70, 14 6s are 84, 14 7s are 98, 14 8s are 112, 14 9s are 126, 14 10s are 140. Now 17,425, 14, 1 तो छोटा है, सो दो नंबर लेंगे. 17 17 है नहीं इसमें, सो 14 1s are 14, 3 34. नाउ 34 तो है नहीं हमारे पास, बट 34 से छोटा नंबर कौन सा है? 28. 14 2s are 28, 14 एंड यहाँ पे 2. 14 minus 8, 6 0. Here 2. 62 62 तो है नहीं हमारे पास, बट हमारे पास है 56. 14 4s are 56, 12 and here 5. 12 minus 6 6 and 5 minus 5 0. 65 65 तो नहीं है हमारे पास, बट 4s are हम ले सकते हैं 56, 15 and here 5. 15 minus 6 9 and here 0. सो कितने पैकेट्स बनेंगे? 114 पैकेट्स and 9 pancakes will be left behind. Understood? Now next question.
41,712 flowers are available to make a garland of 16 flowers each. How many garlands can be made? So 41,712 flowers है garland. कितने garland बनाने हैं? 16 flowers है एक garland में. So we have to find कितने garlands बने हैं. So 16 ones are 16, 16 twos are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 64, 16 fives are 80, 16 sixes are 96, 16 sevens are 112, 16 eights are 128, 16 nines are 144, and 16 tens are 160. 41,712. 16. अभी 4 तो छोटा है तो दो नंबर लेंगे. 41 तो 16 के टेबल में 41 नहीं है तो 41 से छोटा नंबर कौन है? 32. 16 2s are 32, 11 and ये 3. 11 minus 2 9, 0. 97 तो है नहीं हमारे पास. सो क्या करेंगे? 6 96, 1 0. 11 तो छोटा है 16 से, सो 0 0. 112. 16 sevens are 2607 garlands. Understood? Next question. Two lakh 37,852 shop cakes were packed into a packet of 18 shop cakes each. How many packets can be made? So 2,37,852 शॉप केक्स है और उसमें से एक पैकेट में 18 शॉप केक्स है. सो कितने पैकेट्स हम बना सकते हैं? दैट वी हैव टू फाइंड. 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54, 18 fours are 72, 18 fives are 90, 18 sixes are 108, 18 sevens are 126, 18 eights are 144, 18 nines are 162, and 18 tens are 180. 2,37,852. Here 18s are 2 तो छोटा 18 से, सो 23. 18 के टेबल में 23 नहीं है बट उससे छोटा 18 है, सो 18 ones are 18, 13 and here 1. 13 minus 8 5 7. 18 के टेबल में 57 नहीं है बट उससे छोटा नंबर है 54. 3s are 54, 3 0. 18 के टेबल में 38 नहीं है बट छोटा नंबर कौन सा है? 36. 2s are 36, 2 0. 25 नहीं है, सो 1s are 18, 15 and here 1. 15 minus 8 7 0. 72. 18 4s are 72. So 13,214 packets. Understood? Next question.
4,21,252 shuttlecocks are to be packed in containers. Each container contains 19 shuttlecocks. How many container can be completely packed? How many shuttlecocks will be left behind? So 4,21,252 शटलकॉक्स है टोटल, और उसमें से एक पैकेट में, एक कंटेनर में 19 शटलकॉक्स आते हैं. तो कितने शटल कंटेनर फिल होंगे कंप्लीटली और कितने शटलकॉक्स बच जाएंगे, दैट वी हैव टू फाइंड. 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171, and 19 10 190. फर्स्ट नंबर देखो 4 तो छोटा है, सो 42 19 के टेबल में 42 नहीं आता, बट 42 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 38. 2 38, 12 3, 12 minus 8 4, and 3 minus 3 0. 41 तो 41 है नहीं, उससे छोटा 38 है. 2 38, 11, and here 3. 11 minus 8 3 and 0. Now 32 नहीं है, बट उससे छोटा कौन है? 19. सो 1 19, 12 2, 12 minus 9 3, 2 minus 1 1. 135 नहीं है, बट 7 133 है. 2 0 0. 22 तो नहीं है, बट 1 19. 12 1 3. So how many containers will be filled? 22,171 containers. And 3 shuttlecocks are left behind. Understood? Next question. 8,46,200 copies of a book were equally packed in 20 bundles. How many copies of the book were packed in each bundle? So 8,46,200 copies है बुक्स की, वो 20 बंडल्स में करनी है. तो कितनी कॉपीज होगी एक बंडल में, दैट वी हैव टू फाइंड. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200. No. 8 तो छोटा है, सो 84. 12 24 80. 4 6 2 40. 3 60. 21 20.
zeros are 0. So copies. Understood? Now let us start our next topic, that is properties of division. There are two properties. अगर कोई भी नंबर को हम सपोज 42,163 डिवाइड बाई 1 करें तो क्या होगा, वही नंबर आएगा. कोई भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करे तो सेम टू सेम नंबर 42,163. अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? कोई भी नंबर को वही नंबर के साथ हम डिवाइड करें तो हमें आंसर में क्या आएगा, 1. अंडरस्टूड? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कोई भी नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करें तो हमें आंसर वही नंबर मिलता है. एंड कोई भी एक नंबर को वही नंबर के साथ हम डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1. दोज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ दैट डिवीजन. नाउ relation between multiplication and division. Now कोई भी एक नंबर दिया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिवीजन फैक्ट लिखते हैं. यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5. तो डिवीजन फैक्ट इसका क्या होगा, मैं 15 को अगर 5 के साथ डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3. और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ या 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँ, दोनों का आंसर मुझे क्या मिलेगा, 15. अंडरस्टूड? 21 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 3. तो 21 डिवाइड बाई 3 करूँ तो वो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 7. यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ, दोनों का आंसर मुझे 21 ही मिलेगा. अंडरस्टूड? दिस इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. थैंक यू.